Assalamu alaikum guys. My name is Dr. Kamran. I am here with you. The topic of discussion today is O levels mathematics. In O level mathematics, the topic is which we are covering today, making variable as a subject. Okay. First of all, most of the student are confused about how you have to separate variable or how you have to make variable as a subject because they do not have some basic knowledge about uh, concept of the variable and the constant. So before starting my topic of variable to make a variable as a subject, I just want to clear about what is the difference between the variable and the subject, variable and the constant. And one important thing is that variable value will not be constant everywhere or in any place. What does it mean? For example, height of a student is variable till certain age or certain time period. After certain time period or age, it's become constant because it does not increase. वो बढ़ती नहीं है. तो similarly with certain time period वो क्या होती है? Constant होती है. Constant हो जाती है और certain time period तक वो variable रहती है. Similarly, for example, weight of a student, it may be variable because it may change with respect to height, with respect to age, with respect to time. It is not constant. So all variables normally in mathematics we assign with any alphabetic number. What is alphabet? Alphabet means ke X, Y, Z. These are the alphabet. So we assign these alphabet to represent a variable which value does not keep constant. Take another example. What is another example? For example, let's say distance. In physics, you all are the student of science, or maybe you have a background of the science, okay, and you know that what is the definition of the distance. We are not going in detail of the definition of the distance. हम उसकी definition की detail में नहीं जा रहे हैं, but just I want to clear you कि what is distance. अब distance में क्या होता है? Normally distance we represent by d. हम d से represent करते हैं distance को. क्यों distance को d से represent करते हैं? Reason is that कि it is not constant in any time or everywhere. For example, अगर मैं यहाँ से मैं तुमसे कहूँ कि you have to cover distance from North Nazabad to Clifton, the value of distance will be different as compared to अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें distance cover करना है, for example North Nazabad towards Gulshan, तो your value of distance will be different. तो इसलिए normally we represent this distance by d. D is a alphabet that represent distance in physical quantity, as a physical quantity के तौर पे उसको represent कर रहा होता है. हम उसको distance से represent करते हैं और variable कहते हैं हम उसको. What are other example of the variable, guys? Other example of the variables are height, we have already discussed. Weight of student, clear. Similarly, number of student in a class, it may vary, वो change हो सकते हैं. For example, अगर मैं आपसे कहूँ कि in case of mathematics class here today, may be possible there are 20 student in my class, or there is possibility in class of physics there may be 40 student. तो it means कि number of student जो है they are variable. तो we can represent that number of student by any alphabet. Like for example, for simplicity मैंने इसको number of student का represent by n. So you may represent by a, y, z and so on. Clear? What about the constant? Constant क्या होता है? Mass of earth. Mass of earth is constant in everywhere.
its value does not change. Similarly, gravitational force on earth, it is constant, 9.8 meter per second square, वो constant है. Until and unless you move in towards space, अगर आप space में ना चले जाओ तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. तो दीज आर कांस्टेंट वैल्यू. अब इन कांस्टेंट वैल्यू को भी हम फॉर सिंप्लिसिटी, हम जैसे मास ऑफ द अर्थ को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बट इट इज कांस्टेंट. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय जी, स्मॉल जी, इट इज आल्सो कांस्टेंट. बट एक्सीलरेशन नॉर्मली वी रिप्रेजेंट, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, बट इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, उसके हिसाब से चेंज हो रहा होता है, ठीक है. तो नाउ दिस इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया. अब व्हाट इज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेकिंग वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट. This is chapter number 6 in D2. Chapter 6 D2 मैथमेटिक्स. क्लियर? ये मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 है और D2 हम इन D2 वो हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज व्हाट इज आवर टारगेट. हमें हर सब्जेक्ट के अंदर वी नीड ए स्टार और ए ग्रेड, हमें वो चाहिए होता है. तो ए स्टार और ए ग्रेड रिक्वायरमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एग्जामिनर रिक्वायरमेंट फॉर दिस सब्जेक्ट टॉपिक. इस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज आवर एग्जामिनर रिक्वायरमेंट? एग्जामिनर रिक्वायरमेंट and marking scheme for making variable as a subject, chapter number 6 book D2. उससे अब हम क्या कर रहे हैं, certain points मैंने mention किए as per the examiner requirement. Number 1, subject variable should be positive. यानी जिस variable को subject बनाना है इट शुड बी पॉजिटिव. पहली बात ये वो पॉजिटिव होना चाहिए. इट शुड बी सिंप्लीफाइड फॉर्म एज पर एग्जामिनर. यानी अगर एग्जामिनर ने आपको रिक्वायर्ड किया है कि यू रिक्वायर्ड आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आंसर चाहिए, ठीक है. और अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो कहता है द आंसर शुड बी इन कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, और इन फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन में मेंशन करना चाहिए, ठीक है. तो जो उसकी रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाइड रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू मेंशन योर आंसर इन दैट सिंप्लीफाइड रिक्वायरमेंट एज पर एग्जामिनर. वो एग्जामिनर आपको मेंशन करता है पेपर के अंदर कि भाई उसको इतने डेसिमल प्लेसेस तक इस क्वेश्चन का आंसर रिक्वायर्ड है और इस वेरिएबल का आंसर रिक्वायर्ड है. ओके, यू गॉट माय पॉइंट. अब क्या है, नो कोफिशिएंट and divisor attached with subject variable. subject variable के साथ ना कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, ना कोई डिवाइजर अटैच हुआ हो. इट मींस कि इट शुड बी अलोन. तो व्हाट आर एग्जामिनर रिक्वायरमेंट हियर टू मेक सब्जेक्ट एज अ वेरिएबल. हमारे पास क्या है, एक एग्जामिनर रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि भाई आपको फॉर एग्जांपल देयर your required variable should be positive. आपका required variable positive होना चाहिए. And second important requirement is that कि it should be in simplified form as per examiner report. And similarly no coefficient and divisor attached with subject variable. उसके साथ कोई coefficient नहीं होना चाहिए, ना कोई divisor attach होना चाहिए. अब now take example to क्लियर दीज 3 स्टेटमेंट. हम इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल लेते हैं. हमने एक एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y या 2y इक्वल टू 4.
दिस इज योर इक्वेशन। लिखता कैसे एग्जामिनर? एग्जामिनर ऐसे लिखता है, यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर देगा, ये ब्रैकेट में मेंशन कर देगा। व्हाट डज इट मींस? इट मींस के यू हैव टू मेक x एज अ सब्जेक्ट। देयर आर टू वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल है भाई इस इक्वेशन के अंदर? वी हैव टू वेरिएबल, x एंड y। ओके, हाउ मेनी कांस्टेंट आर हियर? ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। देखो, देयर आर टू वेरिएबल्स x and y. Okay बच्चों, clear? Now what about the constant? There is one constant. Constant क्या है? 4. Which value is constant? Okay? अब now second important thing. ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जब भी एक क्वेश्चन लिखा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन दिस इक्वेशन और हाउ मेनी नंबर ऑफ कांस्टेंट आर इन दिस इक्वेशन। तो वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल वी हैव फाउंड कि भाई देयर आर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है इन दिस इक्वेशन। क्लियर? ओके, अब व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड वेरिएबल जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है? द रिक्वायर्ड वेरिएबल इज हियर x, जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ कि आइदर दिस इज द लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, पहली चीज ये कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई? द डिग्री और पावर ऑफ दीज वेरिएबल इज 1। देखो यहां नजर आ रहा है, जब ये कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की पावर और डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है? 1 है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये दिस इज एन लीनियर इक्वेशन, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज हमने क्या आइडेंटिफाई करी कि इन दिस लीनियर इक्वेशन वी रिक्वायर्ड x एज अ सब्जेक्ट वेरिएबल। हमें x जो है वो सब्जेक्ट वेरिएबल के तौर पे चाहिए। तो मैंने क्या कहा था? आई टोल्ड यू, पहली रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर क्या है भाई? पहली रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर, सब्जेक्ट वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। तो व्हाट इज आवर सब्जेक्ट वेरिएबल? Subject variable is x. So this subject variable is positive or negative? Look at the sign here. If you don't have sign, so it means कि this variable is positive. Negative sign we always mention. अगर negative होता तो मैं यहाँ पे mention करता। अब मैंने यहाँ mention नहीं किए तो it means कि this is a positive variable. Okay? तो first requirement is fulfill here. our variable is positive. Okay, what about the second requirement? Second requirement, it should be simplified form as per examiner. ये हम बाद में देखते हैं। Move toward the third requirement. No coefficient and divisor attached with subject variable. अच्छा, अब divisor क्या है भाई? नीचे कुछ divide हो रहा है? No, there is no divisor here. कोई divisor नहीं है, but one problem is here. What about this problem? Coefficient is attached here. What is the coefficient is here? 2. So 2 is coefficient of this x which is attached here, जो attached हुआ है। अब हमें इसको रिमूव करना है। ठीक है भाई, कैसे रिमूव करना है हम स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पे कैसे स्टार्ट करते हैं? हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भाई ये हमने लिया 2x को इधर ही रखा एंड मूव दिस 2y ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। हम इसको दूसरी साइड मूव कर रहे हैं।
क्यों हमने इसको इधर रखा गाइस स्टूडेंट? हमने इसको इधर इसलिए रखा कि यू रिक्वायर्ड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x को हमें पॉजिटिव रखना है, सो देयर इज नो नीड टू मूव दिस x ऑन अदर साइड। अगर ये नेगेटिव होता देन वी मूव, हम उसको मूव करते। हमने क्या किया, y को उधर मूव किया। जैसे ही हम y को उधर मूव करेंगे एंड कीप दिस वन हियर, तो you put equal to here and again on the left side you have a 4, ये 2y जाकर उधर क्या हो जाएगा, it is positive तो it convert into negative 2y, ये minus 2y हो जाएगा। ठीक है भाई। now अब क्या है, रह गया प्रॉब्लम भाई, x के साथ एक चीज है, वो क्या चीज है, x के साथ, आपके x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, मूव दिस 2 फ्रॉम हियर, तो x के साथ ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y अपॉन 2, तो ये दोनों के नीचे आएगा। क्लियर राइट? अच्छा, अब यू में स्टॉप हियर, यहां पे भी स्टॉप कर सकते हो, और यू में गो इन डिटेल और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी भाई, मैंने लिखा x इक्वल टू 4 अपॉन 2, ब्रेक कर रहा हूं, माइनस 2y अपॉन 2, कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नाउ x इक्वल टू 2 माइनस 1y यानी y। सही है, तो इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर, रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड आंसर एज पर एग्जामिनर। अगर यहां तक तुम लोग कर लेते हो इस इक्वेशन को सॉल्व, तो यू विल गेट 100% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? रिपीट, क्या किया मैंने भाई, मैंने क्वेश्चन क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, मेकिंग वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम बुक D2 मैथमेटिक्स। क्या था, हमने एग्जामिनर रिक्वायरमेंट मेंशन करी हमने, दीज आर 3 एग्जामिनर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज एग्जामिनर रिक्वायरमेंट आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने उसमें क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा भाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, x को एज अ सब्जेक्ट वेरिएबल बताना है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि भाई यहाँ पे 2x दिया हुआ था, इसको इधर ही रखा क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव चाहिए था, ये पॉजिटिव रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद हमने क्या किया, इस 2y को इक्वल टू के उधर मूव किया। क्यों मूव किया उधर इक्वल टू के, क्योंकि यू हैव टू सेपरेट x विद अदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। x को हमें सेपरेट करना है विद अदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो हमने क्या किया, इसको उधर मूव किया, इसको यहीं रखा। फिर x के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको डिवाइड में कन्वर्ट किया, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, और उसको ब्रेक किया विद 4 एंड विद 2 एंड get a simplified form. Clear? So now this topic is completed. We are moving towards another example in next video. Thank you so much.